Hi guys, I'm Kajol Tyagi and you're watching me on Telly Glam and I hope you keep watching. Welcome to Telly Glam Hi, nice to and be here. many congratulations for Punch Beat Season 2. क्या कहना Thank you so much. चाहोगे कितने एक्साइटेड थी आप while shooting या नर्वसनेस थी? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपकी न्यू एंट्री है या आपने सीजन 1 में भी आप थे? I mean, मैं तो from the beginning of time से Punch Beat से जुड़ी हुई हूँ. Even when like most of our I think right before Big Boss when Vikas had written the show, तब से I think Priyank, Khushi, Sindhuja and Harshita, we've been there since then. A lot of people changed and all. Then eventually season 1 cast हुआ. But like I've been there from the beginning, man. My character or my journey with Punch Beat is from day one. So ओके सो सीजन 2 के लिए क्या कुछ प्रेशर था आपको जैसा सीजन 1 ने बेंचमार्क सेट किया था इतना पसंद किया गया था सीजन 2 के लिए कितना कुछ प्रेशर था? I feel हर चीज के लिए I certainly like मेरा बहुत self induced pressure होता है. I'm very like I get very nervous about a lot of things, especially if I've invested so much time and energy. So of course as an artist you always want कि आपका जो art है वो लोगों को पसंद आए. So वो pressure तो I think constant है and वो होना भी चाहिए because then you keep working better. I think there should be always room for improvement. So I'm very like I was nervous and I think for 72 hours I didn't even watch the show when season 2 came out. I was so like nervous. I was like, okay, I'll watch it tomorrow. I'll watch it tomorrow. I was just looking at reviews. I was liking how people were responding to it, and at least मेरे को inbox में बहुत messages आए. And then third day, I calmed myself down. I'm like, let's watch it. Then I watched it as an audience member with a friend of mine, and I'm so happy I did because a lot of the pandemic के बाद ये हुआ है तो इसलिए बहुत सारा ऐसा चंक था जो स्टोरी में अक्षय सर thanking him for that उन्होंने काफी on the spot create किया. So with that regard, as an audience ही मैंने उस शो को देखा क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो किरदार थे और जो शूट थी वो साथ में नहीं थे. So उन लोगों को देख के it was just like okay, I knew my journey, I knew the story all in all कि क्या story है, but like performances, nuances, the dialogues, the moments, वो सब मैंने भी as an audience enjoy किया. So I'm grateful. I'm very grateful that Punch Beat 2 मेरी जिंदगी का हिस्सा है. ओके सो इसके अलावा मैं जानना चाहेंगे आपके कैरेक्टर में कितनी सारी चेंजेस आई है या सीजन 1 में जो आपका कैरेक्टर था सीजन 2 में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है या एनीथिंग सस्पेंस? सबसे बड़ा चेंज तो आई थिंक मेरे बालों का कलर काफी ब्लू ग्रीन था लास्ट सीजन एंड दिस टाइम इट वाज रेड. So with that regard, I think that was like a physical change. रही बात as a personality की, तो लारा काफी I think लारा का किरदार काफी मेरे स्कूल हाई स्कूल से एटलीस्ट मैंने उसको बहुत चीजें दी हैं. बहुत ही गॉथिक किरदार ऑलरेडी इन्होंने सोचा हुआ था एंड coincidentally from my 10th to 12th I was very much into rock music and punk rock and like Nickelback and Pink Floyd and Metallica. So when I was growing up, I was listening to these rock bands from, of course, abroad. I was into a lot of American alternative rock. तो उस तरह के जो बच्चे होते हैं ना वो काफी मतलब start to live that part, you know. I used to wear a lot of kajal, I used to wear a lot of black. Coincidentally I'm wearing it right now. तो एक डेढ़ साल में वही किया है. जब लारा को हम लोग physically उस पे काम कर रहे थे, like my creatives which I have to thank, my stylist which I have to thank, तो हमने काफी वो चीजों को उसमें लाया. तो I felt very like I knew her. So I think the only changes last season, my hair color was a little different. बाकी character wise, I think I held on to who she was the last season too. Except like the storyline is different. Her relationship with her like friends in school, वो थोड़ा अलग है. मेरा सिद्धार्थ के कैरेक्टर रणवीर के साथ एक काफी इमोशनल एंगल है इस सीजन में. सो आई थिंक वो सारी चीजों पे हमने काम किया है और उसमें मेरे डायरेक्टर ने मेरा बहुत साथ दिया. बाकी ऐसा कुछ कैरेक्टर में मेरे लिए ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं था कि ये बहुत ही बुरी लड़की थी अब अच्छी हो गई या अच्छी थी बुरी हो गई. ये ग्रे थी, मिसअंडरस्टूड थी, पर अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़ी थी. एंड आई थिंक दैट हैज बीन मेंटेन्ड बोथ द सीजंस. ओके इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे जब आपका शूटिंग चल रही थी तो उस वक्त आपने किस तरह के प्रिकॉशंस लिए थे
बिकॉज ये जो भी हुआ है कोविड की सिचुएशन में आपकी छुट्टी हुई है, तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लोग ले रहे थे while shooting? सबसे बेसिक प्रिकॉशन विच वी ट्राई टू डू इज लाइक अपनी वैनिटीज को अपना एक सीक्रेट स्पेस सैनिटाइज स्पेस बना के रखा है, एटलीस्ट पर्सनली आई ट्राई टू डू दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स मास्क सैनिटाइजेशन, बट it's weird क्योंकि एज एन एक्टर आपको कुछ देर के लिए तो मास्क हटाना पड़ता है एंड कभी कभी उस चीज की आदत हो जाती है, तो टाइम एंड अगेन वो एक रिमाइंडर मैं अपने आप को देती कि लिसन कट हो गया मास्क पहनो. एंड एटलीस्ट लाइक सेट पे कोशिश यही की जाती थी कि सब लोग मास्क पहने, बट कभी कभी ना आप इतना अपने कैरेक्टर के फ्लो में होते हो कि आप भूल जाते हो कि दुनिया में पैंडेमिक भी चल रहा है. सो दैट वाज ऑलमोस्ट लाइक बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन और amidst द पैंडेमिक. ऑफ कोर्स हमारे कोविड टेस्ट हो रहे थे while we were traveling and things were like taken care of, but थोड़ा सा अजीब था ऐसे माहौल में शूट करना, you know. ओके, इसके अलावा जानना चाहेंगे काफी सारी न्यू एंट्रीज हुई है इस सीजन में, तो आपका बॉन्ड किससे बना हुआ है या और कौन सबसे ज्यादा आपका फेवरेट कैरेक्टर रहा है? कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो पॉपी जब्बाल और अनुज चौधरी, ये दोनों के कैरेक्टर्स मेरे को इतने फैसिनेटिंग लगे. ऑफ कोर्स उर्फी एंड संयुक्ता दे आर लाइक क्लासमेट्स, तो उनका मेरे को जोन भी पता है, इट्स वेरी लाइक हमारी एज ग्रुप में. बट दीज न्यू कैरेक्टर्स, बी इट शताफ फिगार हु प्लेड विक्रांत, be it Poppy Jabal or Anuj Chaudhary and Jaswinder, these new characters of different generation, they have gotten इतना ज्यादा मतलब चार चांद लगा दिए. And I personally enjoyed watching them on the show because वो मेरे लिए भी नए faces थे पंचपीठ में, and a lot of us we didn't shoot together because वो different storyline, different parallel stories चल रही हैं. So when I was watching them and I literally messaged, I think all of them, that they have done a brilliant job. I think I sent voice notes to all of them. Yes, after my first season, I kind of reached out to everybody. But in that case, I told Vikrant का जिन्होंने किरदार निभाया, I was like, आपने almost international upgrade दिया है show को, because he's so good looking, salt and pepper. His performance was so good. Poppy, I personally loved her character. I wish I could play something like Cruella, because वो मेरा favorite cartoon character भी था growing up, 101 Dalmatians में, and I would just look at Poppy and look at her perform and I'm like, you are giving me Cruella vibes, and she's like, as long as it works. And she's also actually a good actor, so I enjoyed watching all four of them. Anuj sir जिन्होंने विष्णु का किरदार निभाया, अच्छा मतलब आपको एक्सपीरियंस दिखता है लोगों में जो लोग काफी टाइम से इंडस्ट्री में हैं. ओके, सो इसके अलावा अगर फेवरेट सीन की अगर बात करें तो आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा? मेरे एक्चुअली दो बहुत ही फेवरेट सीन्स हैं पर्सनली मेरे. आई होप आप पूछ रहे हो जिसमें मैं आप हो या आप नहीं भी हो तो भी फेवरेट सीन ओवरऑल सीजन 2 में आपका कौन सा है? सो मेरे लिए आई थिंक मेरा एंजाइटी अटैक वाला सीन वो काफी इट हिट्स होम, लाइक इट वाज वेरी पर्सनल फॉर मी टू पोर्ट्रे समथिंग दैट मैंने असल जिंदगी में मतलब फॉर्चुनेटली ज्यादा नहीं बट टाइम एंड अगेन एक्सपीरियंस किया है. वो सीन मेरे लिए करना बहुत लाइक थेरेप्यूटिक था. लाइक आई वाज लाइक ओके आई एम ट्राइंग टू पुट समथिंग आउट जिसके बारे में इतनी बात नहीं होती, एंजाइटी के बारे में एंड ऑल दैट. एंड उस जगह पे मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, बट वो मेरा एक इम्पोर्टेंट सीन था. एंड एक मेरा रणवीर के किरदार जो सिद्धार्थ शर्मा है उनके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट सीन था. एंड उस दिन मैं बहुत रोई और मेरा क्लोज समहाउ अक्षय सर ने लास्ट में लगाया. पहले उन्होंने रणवीर का क्लोज लिया, फिर मेरा 2 शॉट लिया. But by the time he took my clothes, I was already drained with like crying and my makeup was off and all. But somehow उस दिन मैं monitors नहीं देखती. So मैंने किया वो, तो वो मेरे लिए बहुत ड्रेनिंग था. आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन होती है जो आप 2-3 घंटे सिर्फ रो ही रहे हो. So I think all those crying scenes now that I've seen on the show, I mean I won't say wow, but at least like मुझे इतना cringe feel नहीं हुआ अपना काम देख के. So I was like चलो देखने लायक कर दिया है परफॉर्म. एंड वैसे आई थिंक पर्सनली आई एंजॉय वाचिंग समीर सोनी. I just love watching him on screen. Oh my god. And इस सीजन में उनके कैरेक्टर का इतना ग्राफ चेंज हुआ, इतना ग्रे इतना डार्क था. तो सर का तो मतलब परफॉर्मेंस देख के, so every time he comes on scene I almost want to laugh and be like, oh my god, what is he gonna do? So I think his scenes were one of my favorite parts. ओके, सो काजल, इसके अलावा अगर वेब सीरीज के अलावा आपसे पूछा जाए फिक्शन शो में अगर आपको अपॉर्चुनिटी या अप्रोच किया जाए आपको
सो वो कौन सा फिक्शन शो होगा या रियलिटी शो भी अगर जैसे आता है बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, देयर आर स्प्लिट्सविला, रोडीज, तो आप इस रियलिटी शो में से कौन सा रियलिटी शो पसंद करना चाहोगे? I mean, एक बार के लिए I can still consider Big Boss. खतरों I can't do because I'm petrified of reptiles. So मेरे को सांप बिच्छू कुछ भी दिख भी गया तो I don't know, I'll just leave and run back to India. So that's out of question. Splitsvilla Roadies जैसा मैं काम कर चुकी हूँ कुछ साल पहले जब मेरी करियर की शुरुआत हुई थी तो एक रियलिटी शो किया था youth based. But Big Boss I feel is more of a human experiment. So that's one show I don't mind. But at the same time, I'm also scared. And as far as fiction is concerned, I think I want to do thoda like creative stories. I want to work with newer people. Like मुझे लगता है जितने भी अब आ रहे हैं मेरे राइटर दोस्त भी हैं, डायरेक्टर दोस्त हैं, उनका विजन be it inspired by Hollywood or anything इतना फ्रेश है दैट मुझे बहुत मतलब सौभाग्य होगा मेरा कि मैं कुछ नए डायरेक्टर्स नए आर्टिस्ट लोगों के साथ अगर लाइफ में काम कर पाए बिकॉज आई लव फ्रेश पर्सपेक्टिव्स इन जनरल एक वो रॉनेस जो एक शुरुआत के करियर फेज में आप दे सकते हो बीट अनुराग कश्यप का देवडी और लाइक करण जौहर का कुछ कुछ होता है लाइक उन्होंने अपने इंटरव्यूज तक में कहा है कि every time Karan Johar makes a film everybody comes out and they're like it wasn't kuch hota hai that rawness that comes. So I think it is one of my like kicks to work with newer people who have like more passion and things to do. So I hope I get to work with new talented people in future. Okay, lastly जाते जाते आप फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? मैं फैंस और व्यूअर्स को यही कहना चाहती हूँ कि शुक्रिया आपने पंचवीट को इतना प्यार दिया कि हम सीजन 2 लेके आ पाए. आई होप सीजन 2 को आप इतना दें कि हो सका कभी लाइफ में सीजन 3 आए, शायद बड़े हो जाए ये बच्चे, बट आप लोगों के प्यार की वजह से ही हम जैसे आर्टिस्ट एग्जिस्ट करते हैं. सो प्लीज कीप लविंग अस एंड आई होप आई कैन बी वर्दी ऑफ इट एंड एंटरटेन यू गाइज एंड मेक अ डिफरेंस एंड put a smile on your face with anything that I do in life, and that's all I want from you. Thank you for supporting.